Good morning, everyone. Today, here we are starting history. Subject is history, that is EVS 2 of Standard 5th, and the topic is history and the concept of the time. The concept of time. So, here we will we are going to learn this four topics. That is, we will discuss on this four topic of history. That is division of time and the timeline, measure of time and methods of measuring time, historical periods and scientific methods of measuring time and establishing age. Now, how time is divided, division, okay? Your division of time means how time is divided, कैसे टाइम को डिवाइड किया गया है और टाइमलाइन को कैसे पढ़ाया गया है हमको हमको इस लेसन में बताया जाएगा एंड हाउ टू मेजर टाइम हम टाइम को किस तरीके से मेजर करते हैं ओके एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम historical periods different historical periods and scientific method of measuring time and establishing age किस तरीके से डेटिंग की हुई है डिफरेंट एज इसके हिसाब से एज मीन्स हमारी एज नहीं 16 17 18 वाली एज नहीं स्टोन एज वैसा जो एज बताया है ना हमको हिस्ट्री में वो एज ओके एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम टाइम को मेजर करने के लिए साइंस ने कौन सा मेथड यूज़ किया है वो हमको इस लेसन में आगे बताया जाए Now, first we will discuss the first point that is division of time and the timeline. There are different methods of reckoning time. Time is continuous, but for our convenience, we divide it in two periods. The method that we use for reckoning time depends on our purpose for dividing it and manner in which we do it. See, time is continuous. Time does not stop for everyone. Time रुकता नहीं है. एक दिन होता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है. Then again, the next day comes. So it is continuous and it is going on and on. वो चलते जा रहा है, वो रुकेगा नहीं. But फॉर आ कन्वीनियंस हमारी जो काउंटिंग के लिए या हमारी कन्वीनियंसी के लिए हमारे आराम के लिए हमने इसको डिवाइड किया हुआ है रात दिन सुबह शाम ये भी क्या हो गया टाइम को मेजर करने का एक पार्ट है ओके so for example at sunrise we say it is morning now the day has begun at sunset we say it is evening now soon it will be night at the end of the day it becomes dark and it is night this means that we divide the day into two equal parts that is day and night. Now this day and night is divided into two equal parts that is day and night. हमने उसको डिवाइड किया हुआ है तो हमको मालूम पड़ता है कि हमने सुबह के टाइम पे हमको ब्रेकफास्ट करना है दोपहर के टाइम पे हमको लंच लेना है शाम के टाइम पे हमको फिर ब्रेकफास्ट स्नैक्स लेना है एंड देन इन द नाइट वी हैव डिनर इस तरीके से हमने हमारी कन्वीनियंसी के लिए हमने टाइम को डिवाइड किया हुआ है बट वो डिवाइड हुआ है अलग अलग होता है नहीं होता है इट इज कंटिन्यूस वो वन बाय वन जाएगा ओके नाउ सी दिस इज the next that is earth rotates around its axis at a certain speed similarly it also revolves around the sun see there is two type of earth's motion that is rotation and revolution आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा that earth rotates also and earth revolves also so revolution and rotation is the motion of our earth दो टाइप से घूमता है उसका दो मूवमेंट होते हैं एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन एट सर्टन स्पीड उसका कुछ स्पीड है उसका जो फिक्स है मतलब कभी फास्ट घूम रहा है कभी स्लो घूम रहा है आज उसका मूड नहीं है तो आज धीरे धीरे जाएगा कल थोड़ा और फास्ट जाएगा ऐसा नहीं है या आज उसको ज़्यादा एनर्जी उसका जो टाइम लिमिट है उसका जो स्पीड है वो एक स्पीड दिया हुआ है उसके हिसाब से वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन अराउंड द सन घूमता रहता है ओके सी दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ इट rotates around the sun this is called rotation when it revolves around the sun it is called revolution and the rotation is like this okay ऐसे 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 करके घूमता है उसको क्या बोलते हैं हम रोटेशन और जो सन के आसपास घूमता है उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन सो द सन हैज इट्स ओन लाइट हमारा अर्थ के पास लाइट आता है सन से लेकिन सन के पास उसका खुद का लाइट है and we receive that light from the sun
However, we see only in daytime. Nights are dark. How does this happen? अभी भी क्या है, रात क्या होती है, डार्क ही होती है, और दिन डे टाइम में हमको लाइट मिलता है, बट कहाँ से मिलता है लाइट, सन से मिलता है. As the earth rotates around its axis, that part of its surface which turns towards the sun becomes bright. The part that moves away from the sun moves into the darkness. See, this is sun and this is earth, okay? This is sun and this is earth. This part you will this sun will receive light from the sun, and this part will be black. So here it will be the day and here it will be the night. The earth takes 24 hours to complete one rotation around its own axis. The earth needs 24 hours to complete one rotation. Okay, and this 24 hours approximately divided into 12 hours of a day time. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक दिन में सॉरी, जो दिन होता है वो 12 घंटे का होता है, और जो रात होती है वो 12 आवर्स, यानी वो भी 12 घंटे की होती है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो वन रोटेशन टेक्स the earth takes 24 hours for one rotation, and 24 hours is approximately divided into two parts, that is 12 hours of day and 12 hours of night. A period of daytime and the following night together may one day. Okay, this is what I explained just now. कि 12 घंटा दिन का, 12 घंटा रात का, दोनों को मिलाकर एक दिन बनता है. One day means 24 hours. Now there, you have learned that there are 7 days in a week. That is Monday to Thursday, Monday to Sunday, and make one week. 2 weeks make a fortnight. 15 दिन जो काउंट करते हैं ना हम, 15 डेज, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्थ नाइट. और वन वीक, एक हफ्ते को हम क्या बोलते हैं, वन वीक. ओके, 4 वीक्स मेक अ मंथ. एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्ते मिलके एक महीना बनता है. 12 महीने में क्या होता है, एक साल होता है. इन दिस मैनर वी रेकन टाइम इन अ बिगर एंड बिगर यूनिट्स. क्या हो रहा है, एक मिनट, सेकेंड्स, सेकेंड्स मिलकर मिनट बनता है, मिनट मिलकर आज बनते हैं, मिलकर एक वन डे बनता है, वन डेज मिलकर आपको वीक बनता है, वीक मिलकर आपको फोर्थ नाइट भी बनता है, 4 वीक मिलकर मंडे बनता है, सॉरी मंथ बनता है, और 12 मंथ्स बनकर आपको ईयर्स मिलते हैं. एंड दिस काउंटिंग गोज बिगर एंड बिगर. 10 years decade, then century, and it goes on. Understood? That is all we will learn next line is all about this thing only. One year is followed by another, and when 100 years go by, a century is completed. Means one century completed, 1 year completed. Okay, when 10th century means 1000 years are gone, one millennium is completed. And such a method of dividing time is known as unilinear division of time. इस मेथड को यूनिलाइनर डिवीजन ऑफ टाइम बोला जाता है. Next is common era, that is Christian era. This is a common era in the unilinear division of time. Years that follow one after the other are arranged in serial order. Okay. See this arranging of time. कैसे आप हमको टाइम अरेंज किया हुआ है, ईयर कैसे अरेंज किया हुआ है, 2001, 2, 3, 4 ऐसे है ना. 2001 फिर 10 फिर 20, ऐसे तो नहीं आ रहा है, 1, 2, 3, 4. So these are arranged in a serial order. 2001, 2002, 2003. Okay. In history books also, a chain of events that follow one after the other is presented in a linear and serial manner. हमारी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें भी कैसा बताया है, साल के हिसाब से हमको हिस्ट्री बताई हुई है. ऐसा नहीं है कि 2010 का पहले बता रहे हैं फिर बाद में हमको 2015 का बता रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है, लाइन से जा रहे हो. अंडरस्टूड? For this, usually we refer to the common era, that is Christian era, and written in short as CE और AD. Okay, इसको शॉर्ट में अगर हमको हिस्टोरिक लैंग्वेज में अगर लिखना है तो ये CE और AD बोला जाएगा.
AD means Anno Domini, and CE means Christian era. This is the historical names of the era, या फिर जो historical name है, जो अभी तक की जो past history है उसके जो years divide हुए हैं जिस हिसाब से वैसा, in which means in the year of our Lord. Anno Domini is a Sanskrit word and which means in the year of our Lord. Okay. The calendar we use today is based on the Christian era, now called the Common Era. This era began in memory of Jesus Christ. The first year of this era is the year when it began. See this year, आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं ये English month है, January February को. So yes, it is because this era has begun in the memory of Jesus Christ, which जीसस क्राइस्ट को कौन फॉलो करते हैं? क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज क्रिश्चियन इरा. Hope you people are understanding what I am saying. The first era of this, the first year of this era is the year when it began. It is shown with the number 1. See this number 1 and today is 2020, year 2020. So this is the same era which is going on. ये नंबर 1 से शुरू हुआ था और आज हम कहाँ पहुँच गए? 2020 पर. Okay. The years after that are indicated by the next numbers in the serial order. So here this people what this is about. This is about this that this era is starting from 1 and that is the first century of this era is written as 1. हम लिखते हैं ना नंबर्स जब हमको लिखना होता है तो 1-100 या 200-300 तो ये वैसा ही लिखा जाता है. बस आगे हमको CE that it means क्रिश्चियन इरा और AD means एनो डोमिनी इतना लिखा जाता है. और ये जो ईरा है वो स्टार्ट हो रहा है, ये हमको इस तरीके से मालूम पड़ेगा जहाँ पर CE और AD लिखा होता है. सो द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ ईरा ऑफ दिस ईरा इज रिटन एज. सी हमने पहले सेंचुरी कैसे लिखना है वो दिखाया है. नाउ मिलेनियम कैसा लिखा हुआ होता है, कैसा लिखा जाता है वो बता रहा है. दैट इज 1-2000 इज CE मीन्स क्रिश्चियन ईरा. ओके. Now here is the time before the common or Christian era. See अभी तक जो बताया वो जीसस क्राइस्ट के बाद वाला टाइम था, दैट इज क्रिश्चियन इरा. ओके. उनके बाद वाला टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि उसको कैसे बोला जाता है, कैसे स्टार्ट हुआ. नाउ वी विल टॉक अबाउट बिफोर क्राइस्ट मीन्स BCE. ओके. बिफोर क्राइस्ट इरा, that is BCE, time before the common or Christian era. So the period before the common era is known as the before common era or before Christ, that is BC. That's all what I was saying. The years of this period are counted and written in the reverse order. अब यहाँ पर हम बैकवर्ड्स नंबर पढ़ते हैं ना, 100, 99, 98, 97, 96, ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा. आफ्टर क्राइस्ट कैसा आएगा? 1, 2, 3, 4. ओके. नाउ हियर वी विल राइट एज 100, 98, 97, sorry 100, 99, 98, 97, 96, 95. Like this we will go in the reverse order, in the backward order. The first century before the common era began at the year 100 BCE and ended with the 1 BCE. मतलब बिफोर क्राइस्ट का इरा कब शुरू होगा? वो उल्टा शुरू होगा, 100 से शुरू होगा और 1 पर ख़त्म होगा. हमारा जो एनो डोमिनी है, ओके, दैट कॉमन इरा क्रिश्चियन इरा यू कैन से, that will start from 1 to 100 and this will start from 100 to 1. This is the difference between common era and before Christ era, yeah, before common era. Okay. Now similarly the first millennium before the common era began at the year 1000 BCE and ended with the year 1 BCE. अब मिलेनियम भी हम वैसे ही काउंट करेंगे, इधर से शुरू करेंगे 1000 से और एंड करेंगे 1 पर. ओके. सो द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन इरा इज इंडिकेटेड एज 100. हम 1 to 100 लिखते हैं एनो डोमिनी में, बिफोर क्रिश्चियन इरा में, और 100 to 1 लिखेंगे BCE में. ओके.
and the first millennium before the common era is indicated as 1000 to 1. So this is the difference, 1 to 1000 and 1000 to 1. Now see, let us look at some examples of this method of indicating time before the common era or Christian era. See, now here are the examples. Okay, you can see this, that the Vardhaman Mahavir, you have learned this I think in 4th standard about Vardhaman Mahavir, is written as 15. He was a saint, and he the year जो साल में वो थे वो क्या है 599 BC मीन्स बिफोर क्रिश्चियन इरा. 599 BC से लेकर 527 BC तक किसका किसका कौन सा टाइम था, किसका टाइम था, वर्धमान महावीर. एंड द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्ध इज रिटन एज 563 to 483 BC. अब गौतम बुद्धा कब आते हैं, 563 से लेके 483. सी द नंबर्स, the bigger one is written first and the smaller one is written afterwards, means it is of before Christ era or before Christian era. Understood? Measurement of time and methods of time. See here, to measure time is to measure the length of time. We know the following units of measuring time. See this, in this lesson only, in this video only, I have previously explained that seconds, minute, hour, day, week, fortnight, month, year, century, millennium. These are all the measuring time. We measure time. This is the you can say units of measuring time. Okay. A second is the smallest unit. सेकेंड, एक सेकेंड रुको बाबा मैं आ रहा हूँ, हम यूज करते हैं ना, वो सेकेंड क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है. एंड देन कम्स मिनट, देन कम्स hour, then comes day, week, fortnight, month, year, century and millennium. So there are various methods of measuring time in different parts of the world. Of this, the common or Christian era is the most widely used. सी इसमें से सबसे कॉमन क्या है, क्रिश्चियन इरा और कॉमन इरा ज़्यादा यूज़ हुआ है, ज़्यादा यूज़ होता है. वी जनरली इंडिकेट अ पर्टिकुलर डे बाय राइटिंग द डेट. अब स्कूल में लिखते हो ना डेट, क्यों, क्योंकि हमको रिकॉर्ड चाहिए होता है कि हमने ये डेट में ये लेसन पढ़ा हुआ था, वो दिन ये दिन था, इसीलिए हम डेट लिखते हैं, राइट. अगर हम डेली हमने क्या क्या किया है, होमवर्क कैसे किया है, वो पूरा रिकॉर्ड होता है. तो और सिर्फ स्कूल में ही नहीं, आप किसी ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर भी, आप एक शॉप, नॉर्मल से शॉप में चले जाओ, लोग भी रिकॉर्ड रखते हैं कौन से डे में हमने कितने पैकेट्स बिस्किट्स बेचे हैं. सो दिस इज द जनरल थिंग वी यूज. ओके, द डेट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ दैट डे फॉलोड बाय द name or the serial number of the current month and then the serial number of the current year. You know how date is written. First we write the date, then we write the month and then we write the year. There are other methods too. और भी मेथड हैं आपको काउंट करने के. Have seen that the Christian era began in the memory of Jesus Christ. In this video only we told that कि हमने जीसस क्राइस्ट का जब ये शुरू स्टार्ट हुआ था ये BCE, हाँ, तो ये जीसस क्राइस्ट के टाइम से शुरू हुआ है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, सॉरी एनो डोमिनी, दैट मीन्स आफ्टर क्राइस्ट. It is an age-old custom to start a new era to commemorate a special event, as, for example, the coronation of a great king. We know that Chhatrapati Shivaji Maharaj has started a new era or shaka. See, एक नई नई चीज़ें जब होती है हिस्ट्री में, जो बताया जाता है हमको, उसको एक इरा का नाम दिया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम था, या छत्रपति शिवाजी महाराज का राज था, कौन से टाइम पे था, तो ये साल से लेके ये साल तक. हमको अक्सर ये चीज़ें बताई जाती है. 4th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, ईयर्स मेंशन किए जाते हैं. आगे भी आप जाओगे, आपको 10th तक हिस्ट्री रहेगी, 10th तक आपको ईयर्स के हिसाब से आगे बताया जाएगा. आप में सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था हमारा इंडिपेंडेंस, जो हम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, वो हमको रटाया जाता है. हम नर्सरी में होते हैं, हमको ईयर नहीं मालूम होता, लेकिन जब से हम पढ़ते हैं ना, जब से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, 1947 में हमको क्या मिला, हमको आज़ादी मिली, हमको फ्रीडम मिला. तो दैट ईयर, दैट व्हेनेवर हमको क्या बताता है, वो टाइम बताता है. ओके, वो टाइम बताता है. यहाँ पर शिवाजी महाराज का जब नया उनका शुरू हुआ, उनका राज शुरू हुआ, तभी भी हमको टाइम बताया गया कि वो ये अभी थोड़ी देर पहले आपको यही लेसन में आपको वर्धमान महावीर के जब वो थे, उनका आपको ईयर्स बताए, गौतम बुद्धा के ईयर्स बताए.
तो हिस्ट्री इज ऑल्सो, टाइम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ओके, see here in the photo you can see that one scale is there. BC means before Christian era, BCE. AD means Anno Domini, that is common era or Christian era. And there are the years, 100, 500 and 1000, 1500, 2000, it's all given here. So you can see how it is measured. Okay, now see here. Here also one chart is there. There you can see important events in the life of Chhatrapati Maharaj. This Rajya Abhishek Shaka in 1674 AD. AD means Anno Domini. Okay. See here it's given like birth से लेके डेथ तक शिवाजी महाराज का हमको बताया है कि वो कौन से साल में थे. 1660 लाइक अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020. सो जब भी वो 1630 में आए थे, बर्थ हुआ था उनका, और 1680 तक थे, मीन 1630 से लेके 1680 तक और शिवाजी महाराज का ईरा था. ओके, और उनका जो बहुत बड़ा बड़ा जो उन्होंने काम किया था वो एक शॉर्ट दिया है आपको, पहले बता चुके फोर्थ में, तो एक छोटा सा करके इधर बताया है कि दैट ही born on in the year 1630. He took the oath of Swaraj in 1645. He escaped from Agra in 1666. Then coronation on 1674, and then death in 1680. So Shalivahan, Shaka and Vikram Samvat are two eras that are used in India. The founder of Islam, Muhammad, migrated from Mecca to Medina. The Hijri era was started to commemorate this event. The Parsi community in India uses the Sahanshahi era. See here too, one is of Christian era we are living in. The other one was Chhatrapati Shivaji Maharaj era. And third example is of Hijri era, that is Muslims use today also. जैसे अभी ईद जो होती है चांद देख के करते हैं, तो उसी तरीके से इधर बताया वही है यहाँ पर भी, दैट द फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम को इस्लाम लाने वाले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो मक्का में जब थे, जब वो मक्का टू मदीना उनका जो पूरा पूरा जो हिस्ट्री है इस्लाम का, वो भी एक ईरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज ऑफ हिजरी ईरा. ओके, एंड दिस इवेंट इज commemorate as Hijri era in Islam. वो इस्लाम का हिस्ट्री है. And then here the fourth example is given about the Parsi community. Okay, यहाँ पे पारसी कम्युनिटी का भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है. दे यूज शहनशाही ईरा. उनके ईरा को क्या बोला जाता है? शहनशाही ईरा. दैट हिस्ट्री इज डिफरेंट. हिजरी ईरा ऑफ इस्लाम इज डिफरेंट. देन छत्रपति ईरा, छत्रपति शिवाजी महाराज ईरा इज डिफरेंट, and we are living in common era, that is Christian era. So now you people have understood what are the different time of history. Now here are the some historical period. Okay, we learned in the first lesson that history is a sign that tells us about events that happened in the past. So you people have learned this many time. You people have seen that what is history. History means हम जो अभी तक हो चुका है हम उसके बारे में पढ़ते हैं. Okay, जो भी कुछ गुजर चुका है, जा चुका है, पास्ट हो चुका है. सो वी ऑल्सो लर्न दैट एवरी बायगॉन मोमेंट मेक्स अप द पास्ट. हर जाता हुआ, क्या बोलते हैं, हर जाता हुआ मोमेंट जो होता है वो पास्ट होता है. पास्ट मीन्स चला गया है, अभी वो पास्ट में हो गया. सो द पास्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ हिस्ट्री. सो जो गई हुई चीज़ है वो हिस्ट्री में आती है. अब कुछ भी हो रहा है तो आप हिस्ट्री बोलोगे कि हिस्ट्री है, ये ऐसा हिस्ट्री नहीं है. जो पढ़ाया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है, वो छोटी छोटी चीज़ भी आप काउंट करोगे कि कल मैं स्कूल आया था, वो भी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री नहीं है. इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम. अगर हम एकदम प्रीवियस वाला स्टार्टिंग वाला हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब बर्थ हुआ था सोलर सिस्टम का, वो चीज़ स्टार्ट होती है. ओके, आवर सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 मिलियंस अगो. सो व्हेन इट स्टार्टेड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. अब इतना पुराना हिस्ट्री है जब हमारा सोलर सिस्टम ने बर्थ लिया था.
our Earth is a planet in the solar system. So it is presumed that Earth was also formed 4 billion years ago. 4.5 million ago years ago हमारा अर्थ भी बना था जब ये सोलर सिस्टम आया था. ओके. Now, the span of 4.5 billion years since the Earth formation is a vast period of time. जब से सोलर सिस्टम बना है, जब से अर्थ बना है, तब से लेके आज तक का टाइम, ये कब बुक प्रिंट हुई थी पता नहीं, लेकिन जब ये 4.5 बिलियन था, ठीक है, अभी उसके बाद और 10 साल भी गुजर चुके, 2 साल भी गुजर चुके, वो भी इसमें इंक्लूड होता है. तो जब इतना टाइम गुजर चुका है, इतना टाइम जा चुका है, जब से ये हमारा सोलर सिस्टम बना था, अब तक इसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या चीज़ें आई है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से चली गई है, वो सारा कुछ क्या हो गया, हिस्ट्री बन जाता है. इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रास्प दिस इंटायर पीरियड ऑल एट वंस. एक साथ हम सबके बारे में नहीं पढ़ सकते. It is necessary to divide it into a number of stages in order to understand it better. Therefore, the time in history is divided into two main periods. See, हम इसको बहुत सारी चीज़ों में हम इसको डिवाइड करते हैं और फिर इसके बारे में पढ़ते हैं. फोर्थ में पढ़ते हैं, फिर हम फिफ्थ में पढ़ते हैं, फिर हम सिक्स में पढ़ते हैं. हम एक एक साल पढ़ देते हैं, लेकिन तो भी हम ये 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं एक साथ. Okay, now the history is divided into prehistoric period and historic period. It is divided into two. Now, what is prehistoric period? Now, prehistoric simply means before history. The prehistoric period is the period for which no written records are available by which to write his history. See, जब तक लोगों ने प्रोग्रेस किया, जब तक उन लोगों को लिखने के लिए आया, जब तक उन लोगों ने चीज़ें ढूंढी कि हम किससे लिखेंगे, जब तक लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जब तक उन लोगों ने क्रिएट किया, तब तक जो उसका रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है. हमको रिटर्न रिकॉर्ड्स में जो चीज़ें मिली है और जो वो हिस्टोरिक पीरियड में आती है, और जिसका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आती है. सो हिस्टोरिक पीरियड, द हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल यूजिंग विच वी कैन राइट हिस्ट्री. ओके. Now, see, scientific method of measuring time and establishment age dating. We are actually measuring time when we talk about today's date or date of the week etc. See, जब आप एक कॉमन एग्जांपल है, आप स्कूल आते हो, आप डेट लिखते हो, फिर आप लेसन लिखते हो, तो इससे आपको समझ आता है कि आपने वीक में कितने लेसन कौन से सब्जेक्ट के कंप्लीट किए, राइट. सो दिस इज द way of measuring time when we talk about dates and days. Understood? This method allow us that, see, to identify a particular day, month or year with respect to an earlier or later date, month or year. See here, for example, I will give you the example of our this. You can say our Independence Day. We remember our Independence Day very easily. We remember our Republic Day very easily. We remember our birth date very easily. हम बहुत आसानी से हमारे मम्मी पापा डैडी भाई बहन चाचा चाची किसी के भी बर्थडे हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि सबके बर्थडे साल में एक ही बार आते हैं. अभी अगर आपको लर्न करना होगा कि सबके बर्थडे साल में बहुत सारी बार आ रहे हैं, तो हम लर्न कर सकते हैं, नहीं लर्न कर सकते. So this is the common example which is related to your life, and in the book it's given. See, if it is June, then we know that the earlier month was May. अगर जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो हमको मालूम है कि पहले जून चल रहा था और अभी कौन सा आएगा, अगस्त आएगा. If today is the 10th of the June, then we can tell that tomorrow will be 11th of June and yesterday was the 9th of June. Thus we can measure time, we actually measure its length. So हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं ना, अरे आज कितनी तारीख है, 6 तारीख है, तो कितने दिन हो गए जुलाई के, 6 दिन हो चुके हैं. सो 6 days have passed of the month of July, means we are measuring the length of July. Okay, now next, the events before the beginning of Common Era are mentioned as having occurred through the Common Era. Information about some of these events can only be obtained with the help of evidence buried under the ground. This evidence is usually in the form of broken man-made artifacts and fallen structure. With the help of these remains and using scientific methods, we can determine the time of the events that took place thousands of years ago. सी, जो कॉमन ईरा के पहले का टाइम है,
उसकी इंफॉर्मेशन हमको कैसे मिली है पता है, जो अंदर दब गया था, लाइक अर्थक्वेक आ गया है, पूरा का पूरा सिटी अंदर दब चुका है। जब उसको उन लोगों ने खोद के निकाला, एग्जाम्पल इज मोहनजोदारो, जब उनको खोद के निकाला तो मैन मेड स्ट्रक्चर्स मिले वहाँ पर। कुछ चीज़ें उसमें से टूट भी गई थी और कुछ चीज़ें वहाँ पर थी। So with the help of these remains and using scientific method, we can determine the time of events that took place thousands of years ago. इन सब से हमको हजारों साल पहले क्या क्या हुआ था हमको ये मालूम पड़ता है। So there are many layers of soil deposited one above the other under the surface of ground. The period of these layers and of the remains found in them cannot be stated definitely in terms of date. However, a rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using scientific methods such as carbon 14 analysis, tree rings analysis, that is dendrochronology, etc. These methods are known as dating techniques. See, this is a very important point or very important method in the history, that देर आर मैनी लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड वन अबव द अदर। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारे लेयर्स है सॉइल के। अब उस लेयर को निकाल कर उसके बारे में स्टडी करने के लिए अगर हम स्टडी करते हैं, जो हमारी जो टेक्निक है, टेक्निक है इसको स्टडी करने की, साइंटिस्ट जो भी लैब वगैरह में जहाँ भी ये स्टडी होता है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो हमको डेट नहीं मालूम पड़ती है, लेकिन एक रफ एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं कि शायद ये 4 साल पुरानी है। जो स्टडी से एकदम एक्यूरेट तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन हमको मालूम पड़ जाता है कि 40 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है। सो द मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या है, क्या यूज़ होता है? कार्बन 14 एनालिसिस, ट्री रिंग एनालिसिस, जिसका साइंटिफिक नाम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, दीज आर द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सॉइल का जो एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं कि कितने साल पुरानी है। ओके, दिस मेथड आर नोन एज डेटिंग टेक्निक। By using these dating techniques, we learn how old the layers of soil and the remains found in them are. Then we can determine their period approximately. Okay, हमारा ये टेक्निक यूज़ करने के बाद साइंटिस्ट जब ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो उनको लेयर्स की सॉइल कितनी पुरानी है ये मालूम पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अर्थन पॉट इज एस्टिमेटेड टू बी 5000 years ago, with the help of dating technique we can say the earthen pot date back roughly to 3000 BC। ठीक है, अगर वो जैसे अभी एक अर्थन पॉट मिला है, हमको कहीं से खोद रहे थे कुछ और हमको एक अर्दन पॉट मिल गया जो कि दिख रहा है कि बहुत पुराना है। अब उसकी जो सॉइल है, उसके ऊपर जो चीज़ें लगी हुई है, उसकी स्टडीज़ के बाद हमको मालूम पड़ जाता है कि ये 5000 साल पुरानी है। 5000 साल, तो वी कैन काउंट दैट दिस इज बैक, दिस अर्दन पॉट इज डेट्स बैक रफली अराउंड 3000 BC। ये 3000 साल पुरानी है। देन वी कैन कंक्लूड दैट द पीरियड ऑफ द कल्चर to which the pot belongs must be around 3000 BC। सो हमको ये एक कंक्लूजन मिल जाता है कि ये कौन से टाइम का होगा, ये कुछ बिफोर क्रिश्चियन इरा 3000 ईयर का होगा।